Ignited Minds Tutorials, a renowned online educational platform, has recently released a comprehensive video series encompassing the crucial topic of our environment for Class 10 students in science, specifically aimed at CBSE and Maharashtra State Board syllabi. This initiative aims to provide students with a solid understanding of environmental concepts and their relevance to our daily lives. The video series, curated by expert educators, covers various aspects of the environment, including ecosystems, biodiversity, pollution, climate change, and sustainable development. Each video offers a concise yet informative explanation of the topic, employing engaging visuals and real-life examples. To facilitate better comprehension, by presenting this educational content, Ignited Minds Tutorials aims to ignite curiosity among students and inspire them to become responsible custodians of the environment. Understanding the importance of environmental conservation and sustainable practices can equip them to tackle future challenges and contribute to a greener future. These videos serve as a valuable resource for students preparing for their Class 10 examinations, providing them with an accessible and engaging medium to enhance their knowledge. Access to these educational materials allows students to review the topics at their own pace, reinforcing their understanding and ensuring better retention of information. In conclusion, Ignited Minds Tutorials video series on our environment for Class 10 CBSE and Maharashtra State Board students offers a valuable educational resource that paves the way for a deeper understanding of environmental concepts. By equipping students with knowledge and awareness, this initiative strives to empower the next generation to make informed decisions and actively contribute to the preservation of our precious environment. सीबीएसई में ये चैप्टर है आर एनवायरनमेंट और स्टेट बोर्ड में आपका एनवायरनमेंट मैनेजमेंट लगभग मिलता जुलता सा चैप्टर है. विल स्टार्ट विद दिस टुडे. ठीक है. सो मैंने दोनों को भी क्लब किया हुआ है इसमें. ठीक है. दोनों के भी जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको क्लब किया हुआ है. लगभग सिमिलैरिटीज हैं. ठीक है. ओके. सो एनवायरनमेंट अब धीरे धीरे एक ऐसा प्रसंग बनता जा रहा है जिसमें काफी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज आती जा रही हैं. और जैसे मैंने आपको पहले भी शायद एग्जांपल दिया था, हम लोग जब पढ़ाई कर रहे थे तो शायद कहीं पे 11th में या 12th में एनवायरनमेंट रिलेटेड कोई एक पैराग्राफ हुआ करता था. लेकिन अगर आप अभी रेगुलरली देखो तो पता नहीं कब से 6th या 5th से आपके हर एक बुक में ईवीएस ले लो, साइंस ले लो, ठीक है, सोशल स्टडीज ले लो, ज्योग्राफी ले लो, उसमें एनवायरनमेंट के रिलेटेड एक दो चैप्टर तो होना अनिवार्य हो चुका है. ठीक है. और ये अनिवार्यता सिर्फ भारत में नहीं है, ये अनिवार्यता सारे विश्व के देशों में है. It's an agreement for the restoration of environment because of the tremendous amount of damage that we have done to it in the recent so many years. ठीक है. It becomes, तो इसीलिए यूएनओ ने ये डिसाइड किया कि हम जागरूकता तो फैलाएंगे. अभी जागरूकता फैलाने के बहुत अलग अलग तरीके होते हैं. फॉर एग्जाम्पल यूएनओ में जितने आपके सेलिब्रिटीज होते हैं, दे बेसिकली कन्वे द मैसेजेस फॉर एनवायरमेंट. ठीक है. बड़े बड़े जो टॉप हॉलीवुड के एक्टर्स होते हैं, दे कन्वे मैसेजेस फॉर एनवायरमेंट. ठीक है. दे बिकम ब्रांड एम्बेसडर्स to represent animals which are going extinct, to represent forests which are under the threat of going extinct. ऐसे जहां पे भी थ्रेट है वहां पे सेलिब्रिटी रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका है. दूसरा क्या तरीका है कि आप बिल्कुल एलिमेंट्री एजुकेशन में एनवायरनमेंट के कॉन्सेप्ट को इंक्लूड कीजिए. ठीक है. हम जनरली एनवायरनमेंट रिलेटेड कोई टॉपिक आता है तो बड़े एक थके हुए चीज, मतलब अरे यार ये फिर से आ गया ऐसा, क्योंकि हम रिपीटेडली इसको पढ़ते आ रहे हैं और आप 12th तक इसको पढ़ते रहेंगे. ठीक है. कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी, बट देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ अवेयरनेस दैट नीड्स टू बी क्रिएटेड विद रिगार्ड्स टू एनवायरनमेंट. और अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए आपके स्टडी के करिकुलम में इसको बहुत एक्सटेंसिवली और एग्रेसिवली इंक्लूड किया गया है. एंड इट इज नॉट ओनली इन द करिकुलम ऑफ इंडिया बट इन द एजुकेशन करिकुलम ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज दिस हैज बीन इंक्लूडेड. ठीक है. ओके. तो आपका देखो यहाँ पे भाई साहब, आपका इकोसिस्टम, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, एनवायरमेंट एंड इकोसिस्टम क्या होता है, एनवायरमेंट मैनेजमेंट, हाउ इज इट डन, ऑल दीज आर थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी. तो एक इकोसिस्टम होता क्या है? व्हाट इज बेसिकली एन इकोसिस्टम? हाँ क्या एनवायरमेंट, व्हाट इज एन इकोसिस्टम? तो आपका देखो जैसे यहाँ पे आप देखोगे, क्या आपको पानी की जरूरत है? यस. डू यू नीड सॉइल? यस. दीज आर नॉन लिविंग थिंग्स. डू यू नीड एयर? दीज आर नॉन लिविंग थिंग्स. Along with this, would you need plants? Yes. Would you need animals? Yes.
हर एक की जरूरत दो चीजों से पूरी हो रही है। एक है आपका भाई साहब बायोटिक कंपोनेंट्स विच आर लिविंग कंपोनेंट्स, और दूसरा है आपका अबायोटिक कंपोनेंट्स। तो ये सारी चीजों से हमारी जरूरतें पूरी हो रही है। तो एक पूरे जगह का जो बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स में जो मिश्रण चल रहा है उसको अपन बोलते हैं इकोसिस्टम। ठीक है, दैट इज नोन एज एन इकोसिस्टम। ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स। ठीक है, अगर इकोसिस्टम का मैं एक एग्जांपल दूं तो एक परफेक्ट ब्लेंड है। समझ लीजिए, आप यहाँ पे किसी एक टाइप के म्यूजिक को सुनते हैं। ठीक है, अभी वो पंजाबी म्यूजिक हो चाहे जैज हो चाहे किसी टाइप के म्यूजिक को अगर आप प्रेफर करते हैं तो आप उसी टाइप के म्यूजिक को सुनेंगे तो वो आपका जो यूट्यूब में हो जाएगा वो इकोसिस्टम हो जाएगा। यूट्यूब या जो भी जहां पे भी आप सुनते होंगे वो आपको कॉन्स्टेंटली वो प्रॉम्प्ट करता रहेगा। ठीक है, सो दैट इज योर इकोसिस्टम। ऐसा हम सोशल मीडिया के लैंग्वेज में बोलते हैं, बट ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि इकोसिस्टम होता है परफेक्ट ब्लेंड। ठीक है, बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स का परफेक्ट ब्लेंड होता है आपका इकोसिस्टम। ठीक है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंज्यूमर्स, आपके कंज्यूमर्स क्या क्या होते हैं भाई साहब? एक होता है प्राइमरी कंज्यूमर, दूसरा होता है टर्शियरी सेकेंडरी, देन वी हैव टर्शियरी कंज्यूमर्स। ठीक है, प्रोड्यूसर्स आर द प्लांट्स, व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन? एनिमल और प्लांट क्लासिफिकेशन में हम इसको एक्सटेंसिवली पढ़ते हैं। ठीक है, व्हाट मे बी द रिलेशनशिप बिटवीन लेक एंड बर्ड्स ऑन ट्री? तो एक लेक है और एक बर्ड्स ऑन ट्री है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप हो सकता है? कुड देयर बी एनी रिलेशनशिप बिटवीन देम? व्हाट, हाउ आर दे बेनिफिटिंग ईच अदर? हाँ, तो लेक से पानी पिएगा, चलिए तो फिर एक तरफा हो गया ये तो। और उसको क्या फायदा हो रहा है, लेक को क्या फायदा हो रहा है? बर्ड्स ऑन अ ट्री। ठीक है, बहुत सारे बर्ड्स ज्यादा करके दे फीड ऑन फिश। ठीक है, आपका अगर फिश को फीड करने वाला कोई नहीं रहा, एक लेक है, समझ लीजिए वहां पे ह्यूमन बींग्स नहीं है, तो ये फिश की तादाद क्या होगी, इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी भाई साहब की वजह से लेक में चलना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो फिश की तादाद को कंट्रोल में रखने के लिए देयर आर बर्ड्स। ठीक है, तो इस तरह से इकोसिस्टम में आपका बैलेंस बना रहता है। ठीक है, एक किसी भी एलिमेंट को अगर आप इकोसिस्टम से माइनस करते हैं पूरा ढांचा गिर जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स अगर कहीं पे हैं, अभी आपका समझ लो मस्क्यूटो से लेकर सारी चीजें, तो इंसेक्ट्स को कौन कंट्रोल करता है? फ्रॉग्स। फ्रॉग्स को कौन कंट्रोल करता है? स्नेक्स, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये सारी चीजें, मतलब अगर समझ लीजिए अगर किसी जगह का पॉपुलेशन में फ्रॉग्स मर गए तो all of a sudden you will find that there will be a tremendous amount in the tremendous increase in the population of insects। फटाक से वो बढ़ जाएगा। ठीक है, सो एक किसी भी कंपोनेंट को अगर हम इकोसिस्टम से माइनस करते हैं उसका खामियाजा हम सबको भुगतना पड़ता है। वी ऑल हैव टू सफर फ्रॉम दिस। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब? कैन एनीबॉडी से व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेब? देखो, ये एक फूड चेन है। चेन मतलब सिंकनी है, एक के बाद एक। ठीक है, अभी समझ लो ये सनलाइट से ग्रास उगा, इस ग्रास को ग्रास हॉपर ने खाया, ग्रास हॉपर को भाई साहब मेढक ने खाया, इसको स्नेक ने खाया, इसको ईगल ने खाया, ईगल मर गया, मर जाने के बाद ये मशरूम बन गया, इसके जितने भी नाइट्रोजनस कंपाउंड है ये बन गए। ठीक है, ये चल रहा है फूड चेन। दिस इज कॉल्ड अ फूड चेन। फूड वेब क्या होता है? फूड वेब इंटर कंपोनेंट हो जाता है। ठीक है, और भी बहुत, तो सिर्फ यही लोग तो नहीं है ना भाई साहब, और भी बहुत सारे लोग हैं, तो उनके बीच में इंटर रिलेशनशिप, एक बहुत जंबल सा इंटर रिलेशनशिप होगा, उसको अपन बोलते हैं फूड वेब। दिस इज नॉट अ फूड, दिस इज बेसिकली दिस इज अ फूड चेन, मतलब यहाँ पे एक के बाद एक आएंगे, लेकिन फूड वेब में आपका एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप होगा। ठीक है, सब कनेक्टेड होंगे। ठीक है, राइट द नेम एंड कैटेगरी ऑफ ईच कंपोनेंट। व्हाई इज इट नेसेसरी टू कन्वर्ट दिस पिक्चर टू फूड वेब? क्यों फूड चेन को फूड वेब में कन्वर्ट करना जरूरी है? बता सकता है कोई? फूड चेन को फूड वेब में कन्वर्ट करना क्यों जरूरी? मकड़ी के जाल बन जाएगा भाई साहब। ठीक है, अभी क्या है, जैसे समझो यहाँ पे ग्रास हॉपर है, और भी बहुत सारे, जैसे यहाँ पे फ्रॉग है, ये स्नेक है, ठीक है, ईगल है, तो और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होंगे, इन सब का इनके साथ इंटर रिलेशनशिप होगा, तो ये बहुत एक कॉम्प्लेक्स सा डायग्राम बन जाएगा। ये फूड चेन को फूड वेब में कन्वर्ट करना क्यों जरूरी है? Why do you need to convert food chain into a food web? नहीं, उससे तो फूड चेन का भी रिक्वायरमेंट हो जाएगा। फूड चेन और फूड वेब में सब आ जाएंगे सारे एनिमल्स। फूड चेन में आपने कैटेगरी ऑफ एनिमल्स को ही सिलेक्ट किया है, पूरे इकोसिस्टम को नहीं सिलेक्ट किया है। ठीक है,
फूड वेब में सब लोग आ जाएंगे और सबके बीच में जो इंटर रिलेशनशिप है वो एक्सप्रेस होगा। जैसे ग्रास हॉपर सिर्फ ग्रास पे ही बैठेगा, शायद प्लांट्स पे ना बैठे, शायद फूल वाले प्लांट्स पे ना बैठे, एक पर्टिकुलर प्लांट पे ही बैठ रहा है, ठीक है। वैसे ही फ्रॉग सिर्फ ग्रास हॉपर को ही नहीं खाते, और भी बहुत सारे इंसेक्ट्स को खाते हैं, ठीक है। दे आर जस्ट नॉट फीडिंग ऑन ग्रास हॉपर, दे फीड ऑन मेनी अदर इंसेक्ट्स एज वेल, ठीक है। सिमिलरली स्नेक्स जस्ट नॉट फीड ऑन फ्रॉग्स, दे फीड ऑन माउस एज वेल। तो माउस अगर यहाँ पे होगा तो उसके साथ इसका रिलेशनशिप होगा, ठीक है। तो ऐसा एक कॉम्प्लेक्स, मतलब आप फूड चेन में सिर्फ स्पेसिफिक एलिमेंट्स को ही डाल रहे हैं, फूड वेब में आपका पूरा इकोसिस्टम इंक्लूड हो जाएगा। इसीलिए हम फूड चेन से फूड वेब में आते हैं। फूड वेब में ऑलमोस्ट ऑल कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम आर इंक्लूडेड, ठीक है। पूरे एक इकोसिस्टम का इंक्लूजन हो जाता है। फूड चेन में सिर्फ स्पेसिफिक एलिमेंट्स आर ओनली इंक्लूडेड, ओनली स्पेसिफिक एलिमेंट्स आर इंक्लूडेड, सिर्फ स्पेसिफिक एलिमेंट्स ही इंक्लूड होंगे, ठीक है। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके। So dear students, let us begin another interesting lesson from our system, our environment. We have learned that word environment often being used on the television, in newspapers and by the people around us. आज की तारीख में बहुत बहुत ज्यादा कोशिश की जा रही है कि इसके बारे में जागरूकता को फैलाई जाए, लोगों में अवेयरनेस को फैलाया जाए, ताकि जो हम डिग्रेडेशन कॉन्स्टेंटली कर रहे हैं उससे हम अपने आप को और अपने भविष्य की पीढ़ी को भी बचा पाए, ठीक है। So there's a lot of things that we read. What happens when we add our waste to the environment? In our daily activities, we generate a lot of material that are thrown away. तो obvious सी बात है, काफी सारा waste हम generate करते हैं, ठीक है। So that are thrown away. We have seen that the food we eat is digested by the various enzymes in our body. तो हमारे body में काफी सारे enzymes होते हैं, right from saliva to up to the stomach or intestine. You will have different enzymes acting on the food at different parts, ठीक है। तो यहाँ पे डाइजेस्टेड बाय वेरियस एंजाइम्स इन आवर बॉडी। तो जो भी फूड हम खा रहे हैं ये हमारे, तो आपका जैसे प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन देयर एक्शन, ठीक है। स्पेसिफिक एंजाइम्स, ठीक है। स्पेसिफिक एंजाइम्स आर नीडेड फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ पर्टिकुलर सब्सटेंस। एक पर्टिकुलर सब्सटेंस के ब्रेकडाउन के लिए आपको एक स्पेसिफिक टाइप का एंजाइम ही चाहिए। सलाइवा में अलग टाइप का एंजाइम होगा, आपके स्टमक में अलग टाइप का एंजाइम होगा, इंटेस्टाइन में अलग टाइप का एंजाइम होगा। द एंजाइम ट्रिप्सिन, फॉर एग्जाम्पल, ये एंजाइम ट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन्स इनटू अमीनो एसिड्स। हमारे प्रोटीन्स जो है वो अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। सो ट्रिप्सिन एक ऐसा एंजाइम है जो, ये एक एग्जाम्पल है बेसिकली, ठीक है। तो ये प्रोटीन्स को किस में कन्वर्ट करता है, वैसा वैसे अमीनो एसिड चेन्स में कन्वर्ट करता है। एंजाइम लाइपेज, ठीक है, ये क्या करेगा भाई साहब, लाइपेज डाइजेस्ट फैट्स इनटू फैटी एसिड्स, तो ये फैट्स को फैटी एसिड में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। तो द एंजाइम पैनक्रियाटिक अमाइलेज, ये क्या करेगा भाई साहब, पैनक्रियाटिक अमाइलेज डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स इनटू ग्लूकोज, ये कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। ओके, दैट इज व्हाई वी विल नॉट गेट एनी एनर्जी इफ वी ट्राई टू ईट कोल, क्योंकि कोल में से हमको कोई एनर्जी नहीं मिल पाएगी। आप बोलेंगे भाई साहब कोल को जलाने से एनर्जी मिलती है, तो क्या खाने से भी एनर्जी मिलेगी? द आंसर इज नो, ठीक है। यू विल नॉट गेट एनी एनर्जी, क्योंकि आपके शरीर में जो एंजाइम्स हैं वो कोल पे एक्ट नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? अभी तक जो हमने एंजाइम देखा, कोई एंजाइम भाई साहब प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। कोई एंजाइम भाई साहब फैट्स को फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर रहा है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आपके बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स हैं वो कोल पे एक्ट नहीं कर सकते, और इसीलिए कोल खाने से आपके अंदर एनर्जी नहीं आएगी, ठीक है। ओके, ऑल्दो कोल इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, because the enzymes in our body are unsuitable to break coal and release energy from it. So they are unsuitable to break coal and release energy from it. Okay? Because of this, many human-made materials like plastics will not be broken down by action of bacteria or other saprophytes. तो यही लॉजिक है। देखो, जैसे हमको अगर एनर्जी चाहिए तो हमको प्रॉपर मात्रा में बैलेंस डाइट चाहिए, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, क्योंकि हमारे बॉडी में जो एंजाइम्स हैं दे विल एक्ट ऑन दीज सब्सटेंसेस in order to meet up with the requirements of our body. Okay. Energy is definitely a requirement, but पेट्रोल पी लिया या भाई साहब डीजल पी लिया या कोल खा लिया, इससे भी एनर्जी प्रोड्यूस होगी कि हमारे बॉडी में उल्टा रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। सो आवर बॉडी इज नॉट डिजाइन टू डिकम्पोज पेट्रोलियम, कोल, विच आर ऑल्सो सोर्सेज ऑफ एनर्जी, टू प्रोड्यूस एनर्जी। हमारे बॉडी का डिजाइन कुछ ऐसा है कि ये कार्बोहाइड्रेट्स पे एक्ट कर सकता है, प्रोटीन्स पे एक्ट कर सकता है,
फैट्स पे एक्ट कर सकता है, विटामिन पे एक्ट कर सकता है, मिनरल्स पे एक्ट कर सकता है, जो हमको फूड से मिलता है. इट कैन नॉट प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम फ्यूल. व्हीकल्स का जो डिजाइन है, एक व्हीकल का जो डिजाइन है, वो एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है फ्यूल से. ठीक है, क्लियर. इसी तरह से आपका जो बैक्टीरिया है, ठीक है, या सैप्रोफाइट्स है जो डेड एनिमल्स पे, तो ये सब पे एक्ट नहीं करते हैं. ठीक है, दे विल एक्ट ऑन स्पेसिफिक सब्सटेंसेस एंड ऑन द अदर सब्सटेंसेस दे आर नॉट एबल टू एक्ट. तो कोई भी चीज अगर हम डंपिंग कर देंगे ग्राउंड में, so all the bacteria, microorganisms or the saprophytes, will they be able to decompose that substance? So the answer is no. They will be able to decompose substances which can be decomposed and which are known as biodegradable. ठीक है, बाकी का आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल हो जाएगा. उस पे आप लाखों सालों तक अगर जमीन पे फेंक कर रखोगे, उनके एनवायरमेंट में फेंक के रखोगे, फिर भी वो डिकम्पोज नहीं कर सकते. देयर बॉडी इज नॉट डिजाइन टू डिकम्पोज, जस्ट एज आवर बॉडी इज नॉट डिजाइंड टू take energy by consuming any sort of fuel like coal or maybe petroleum or maybe kerosene. ठीक है, in the same way their body, the microorganisms, उनका body भी भाई साहब डिजाइन नहीं है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस को डिकम्पोज करे. ठीक है, तो दिस इज बेसिकली अ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस. इस पे आपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाल भी दिया तो भी कुछ नहीं कर पाएंगे, बिकॉज द बॉडी ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगाई लैक द रिक्वायर्ड एंजाइम्स. ठीक है, the body of bacteria and fungi lack the required enzymes. आपको टेस्ट देना पड़ेगा. ठीक है, because the body of bacteria and fungi lack the required enzymes. तो आपके जो बैक्टीरिया और फंगाई है, इनमें भाई साहब एंजाइम्स नहीं होते. समझ में आ रहा है ये? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके. These materials will be acted upon by physical processes like heat and pressure. तो इन पे भाई साहब physical processes होगा like heat and pressure found in our environment. These persist for a very long time. तो heat और pressure पे आपका जो environment में है बहुत दिनों तक काम करेगा, तब जाकर ये a set of environmental parameters like heat, pressure, temperature, etc. तो heat, pressure, temperature से इनका decomposition फिर भी हो जाएगा, लेकिन आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इनका डिकम्पोजिशन नहीं होगा. और ये टाइम, ये जो प्रोसेस है, ये बहुत लंबा प्रोसेस है. ठीक है, अगर आप देखोगे हीट हो गया, प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, ये क्या है, बायोटिक है या अबायोटिक है? अबायोटिक है. ये जो अबायोटिक फैक्टर्स हैं, ये इनको डिकम्पोज कर सकते हैं, लेकिन ये टाइम बहुत ज्यादा जाएगा, बहुत बहुत ज्यादा, मतलब लाखों साल लग जाएंगे. ठीक है, आपका जो बायोटिक डिकम्पोजिशन होता है वो बहुत फास्ट होता है. आप सड़ा हुआ खाना जमीन में फेंक दीजिए, 3 दिन बाद आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये बहुत फास्ट प्रोसेस है. जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उन्होंने अपना काम कर दिया है, जो सैप्रोफाइट्स है उन्होंने अपना काम कर दिया, उसको डिकम्पोज कर दिया. ठीक है, दैट्स अ मच मच फास्टर प्रोसेस. ठीक है, so these materials will be acted upon by physical processes like heat and pressure, but under the ambient conditions found in our environment, these persist for a very long time. ठीक है, बहुत सालों तक भाई साहब ये रहेंगे. ठीक है, substances that are broken down by biological processes are said to be biodegradable. तो ये सारे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस है. बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में किसका इन्वॉल्वमेंट होता है? बैक्टीरिया का इन्वॉल्वमेंट होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इन्वॉल्वमेंट होता है. सो दीज आर बेसिकली, ठीक है, substances that are broken down, substances that are broken down by biological processes are said to be biodegradable. तो ये सारे आपके biodegradable हो जाएंगे. ठीक है, ओके, इंक्लूडिंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लीव्स, पेपर, एक्सेट्रा. Substances that are not broken down in this manner are said to be non-biodegradable. इस तरह से जिन substances का डिग्रेडेशन नहीं होता है उनको हम नॉन बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं. आपका प्लास्टिक हो गया, टायर हो गया, ठीक है, सिंथेटिक क्लोथ्स हो गए, जो सिल्क के क्लोथ, सिंथेटिक क्लोथ्स जो आपके भाई साहब मैन्युफैक्चर में, कॉटन वाले नहीं, सिंथेटिक क्लोथ्स. ठीक है, आपके भाई साहब ये सारे थर्मोकोल हो गए, बॉटल्स हो गए, ये सारी चीजों को हम नॉन बायोडिग्रेडेबल में गिनती करेंगे. Include aluminum cans, bottles, plastic products, metal scrap, glasses, etc. These substances may be inert. Inert मतलब ये chemically inactive हैं. They are chemically inactive. इनका किसी चीज पे chemically action नहीं हो रहा. ठीक है? They simply persist in the environment for a very long time. बहुत सालों तक रहेंगे, और बहुत सालों तक मतलब लाखों सालों तक. और they may harm the various members of the ecosystem. प्लांट्स में इनका इफेक्ट आता है. आपने ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखे रहेंगे जहां पे प्लांट्स इनसे इंपैक्टेड होते हैं. ठीक है, आपके एक्वाटिक या एम्फीबियंस इनसे इंपैक्ट होते हैं. ठीक है, टॉर्टवाइज वगैरह, फिश वगैरह, ठीक है, इन सब का इंपैक्ट इन पे होता ही होता है, हजार्डस हो जाता है इनके लिए. ठीक है, all organisms such as plants, animals, microorganisms, human beings, etc.
as well as the physical surroundings interact with each other and maintain a balance in nature. तो बायोटिक और अबायोटिक, ठीक है, बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स का कांस्टेंट इंटरेक्शन हो रहा है नेचर में, हमेशा दोनों में कांस्टेंट इंटरेक्शन चल ही रहा है, ठीक है. There is a constant interaction that is happening. All the interacting organisms in an area together with the non-living constituents of the environment form an ecosystem. ठीक है, ये बनता है भाई साहब आपका इकोसिस्टम. All the interacting organisms in an area together with the non-living, मतलब बायोटिक और अबायोटिक, बायोटिक और अबायोटिक का कॉम्बिनेशन से भाई साहब क्या बनता है आपका इकोसिस्टम. दिस बेसिकली फॉर्म्स एन इकोसिस्टम. So all the interacting organisms in an area together with the non-living constituents of the environment form an ecosystem. तो ecosystem होता क्या है भाई साहब? Is formed by biotic and abiotic factors and their interactions with each other. तो भाई साहब बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स का कांस्टेंट इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है, किसमें? इकोसिस्टम में. Each factor plays very important role in the ecosystem. Producers क्या क्या है भाई साहब आपके? Plants, ठीक है, plants, producers like plants are important. अभी herbivores कौन होते हैं? जो प्लांट्स को खाते हैं, ठीक है. Herbivores like deers, goats, sheep, cattle, horses, camel, etc. feeding upon producers are also important. Predators कौन होते हैं? Predators like lion and tiger, which prevent the overpopulation of herbivores, are also important. भाई साहब lion and tiger important क्यों है? क्यों है भाई साहब? हाँ, किसका पॉपुलेशन मेंटेन करना? प्लांट्स का. कैसे? हाँ, वो हर्बीवोरस एनिमल्स को खाते हैं, तो क्या भला करते हैं? देखो कैसे चीजें रिलेटेड है. आपका समझ लो एक जंगल है, उसमें भाई साहब आपके ग्रास हुए हैं, प्लांट्स हुए हैं, इनको कौन खाएगा? हर्बीवोरस एनिमल्स. हर्बीवोरस एनिमल्स को कौन खाए? लाइक लायन एंड टाइगर्स लोग खाएंगे या प्रेडेटर्स लोग खाएंगे. अगर समझ लो जंगल में से हम लायन, टाइगर्स या प्रेडेटर्स को गायब कर दे तो क्या हो जाएगा? हर्बीवोरस की संख्या बढ़ जाएगी. संख्या बढ़ जाएगी तो क्या होगा? सारा घास पत्ता सब साफ हो जाएगा. अगर सारा घास पत्ता साफ हो जाता है तो क्या हो जाएगा? वो डेजर्ट बन जाएगा बच्चा, ठीक है. फिर सबका जीना मुश्किल हो जाएगा और सॉइल इरोजन काफी ज्यादा होगा. आप देखोगे जब तक घास सॉइल से चिपका हुआ है तब तक उसका इरोजन कम होता है. इरोजन मतलब द कैरिंग अवे ऑफ सॉइल बाय एजेंट्स लाइक विंड एंड वाटर. इसको हम बोलते हैं सॉइल इरोजन. इसको दूंगा ना, ठीक है, इट इज कॉल्ड सॉइल इरोजन. ये सॉइल इरोजन भाई साहब आपका कम होगा अगर ग्रास रहेगा तो. यही ग्रास अगर सारे एनिमल्स खाने लगेंगे तो भाई साहब दिस सॉइल विल गेट एक्सपोज्ड, दिस सॉइल विल गेट एक्सपोज्ड टू द एनवायरनमेंट. अगर ये एक्सपोज हो जाता है तो सॉइल इरोजन ज्यादा होगा. समझ में आ रहा है? ये आर बी क्लियर? तो सिर्फ आपका बायोटिक कंपोनेंट ही नहीं, अबायोटिक कंपोनेंट भी इंपैक्ट हो जाएगा. एक स्पीशी के गायब होने से सिर्फ बायोटिक कंपोनेंट इंपैक्ट नहीं होगा, अबायोटिक कंपोनेंट भी इंपैक्ट हो जाएगा. सॉइल आपका इंपैक्ट हो जाएगा क्योंकि सारे चरवाहे लोग, सारे हर्बीवर्स एनिमल्स लोग अगर इसको भाई साहब चढ़ते रहेंगे तो दे विल बेसिकली टर्न आउट टू बी फ्लैट.
So a question may arise in our mind that whether the caterpillars found in nature, organisms present in filthy places, termites, insects present in dung are really useful. तो मतलब जो गंदे नाली के कीड़े हम बोलते हैं ना, ठीक है, आर दे रियली यूजफुल? यस दे आर. अगर वो नहीं होंगे तो हमारा रहना मुश्किल हो जाएगा. ठीक है. सो आप देखोगे कैटरपिलर्स जो होते हैं, ठीक है, फाउंड इन नेचर, ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन फिल्दी प्लेसेस, ठीक है, termites, insects present in dung, are they really useful? So the answer is yes, they are. However, those organisms are also important, though they are dirty. They are responsible for cleaning the environment. अगर ये ना हो तो हमारा रहना almost next to impossible हो जाएगा. ठीक है. It will be almost next to impossible for us to basically stay. So आपके जितने भी organisms होते हैं, ठीक है, इन organisms में सो जाइए भाई साहब. कितने दिन बाद आ रहे हो तुम? क्यों एब्सेंट थे? इसका कोई रीजन नहीं. हाँ, स्कूल में रिमेडियल में हो तुम? यही होगा. यहाँ क्लासेस बंक करोगे, फिर रिमेडियल क्लास में जाओगे, वहां पे भी कुछ नहीं होगा, अभी बैठ कर सो रहे हो. हेल्प मी अंडरस्टैंड इफ एनी ऑफ योर एफर्ट्स आर ऑन ट्रैक. जैसे जैसे दिन जा रहा है अपनी कब्र खोदते जा रहे हो. आप लोगों में भी से बहुत लोगों का ऐसा ही हाथ होने वाला है. आपको मालूम ही नहीं है भाई साहब, अभी 3 या 4 महीने ही है आपके पास. आप लोग सोच रहे होंगे फरवरी मार्च में चालू होगा, लेकिन आइडियली प्रिपरेशन टाइम आपका दिसंबर तक खत्म हो जाना चाहिए. मैं कॉन्स्टेंटली बोलता रहा आपको, आपने सुना नहीं. अभी आप गए रेमिडियल क्लास में, यहाँ पे भी और एक दो जन जाएंगे, मैं उनका नाम लिख कर दे सकता हूँ. जाएंगे आप रेमिडियल क्लास में. अभी तो आपका रेगुलर क्लास शायद ज्यादा चल रहा है ना, कोर्स खत्म कराना है. इसके बाद रेमिडियल क्लास चालू होगा, उसमें बैठाएंगे 2 घंटा, छड़ाएंगे. इट मीन्स हर चीज की ना यूटिलिटी होती है, अपनी यूटिलिटी को बढ़ाइए. यहाँ पे आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पढ़ रहे हैं, गंदी नाली के कीड़ों का भी यूटिलिटी है. उनको अगर हमने माइनस कर दिया सिस्टम से तो हमारा रहना मुश्किल हो जाएगा. आप अपनी यूटिलिटी को खुद डिफाइन कीजिए, आप अपने स्कोप्स को खुद बढ़ाइए, तभी जाकर वो काम आएगा. ये अब चल रहा है चल रहा है चल रहा है. आई डोंट नो व्हाट वंडरफुल डे आर यू वेटिंग फॉर. कुछ एक दिन आएगा और चमत्कार हो जाएगा. नहीं होने वाला भाई साहब. एक दिन का प्रोसेस ये नहीं है. The more days go by, the more you're going deeper into the shit. यही लैंग्वेज है, और क्या बोलूं. You are going deeper into the trouble, into the mess. It means that our existence is due to the factors present around us. Hence, we should care for these factors. तो these factors हमारे लिए important हो जाते हैं. Paddy is cultivated on large scale in various states of South India. Paddy fields are frequently attacked by grasshoppers. अभी paddy fields होते हैं, इसमें frequent attack किसका होता है? Grasshoppers का होता है. Similarly, frogs are also present in large numbers in the mud of paddy fields to feed upon grasshoppers, and snakes are also present therein upon to feed upon their favorite food frogs. ठीक है. तो पैडी फील्ड्स में अक्सर आप देखोगे कि ग्रासहोपर्स आते हैं. तो जो लोग पैडी फील्ड में काम करते हैं, एक्चुअली पैडी फील्ड्स में इतना पानी होता है हमेशा. ठीक है. पाट की खेती बोलते हैं इसको, और पाट जो होता है वो काफी स्ट्रॉन्ग फाइबर है. ठीक है. तो पैडी फील्ड्स में इतना पानी होता है, ज्यादा करके किसान जब जाते हैं तो बहुत सावधानी से जाते हैं, क्योंकि सांप वो रहता ही है उसमें. सांप क्यों रहेगा? क्योंकि ग्रासहोपर्स आते हैं. ग्रासहोपर्स रहेंगे तो भाई साहब फ्रॉग्स होंगे, इन फ्रॉग्स को खाने के लिए सांप निकलेंगे. ठीक है. सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. ठीक है. इन दिस. So paddy is cultivated on large scale in various states of South India. Paddy fields are frequently attacked by grasshoppers. Similarly, frogs are also present in large numbers in the mud of paddy fields to feed upon grasshoppers, and snakes are also present therein to feed upon their favorite food crops. ठीक है. However, अगर आपका फ्रॉग पॉपुलेशन डिक्लाइन हो जाए तो क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन पैडी क्रॉप? इसमें पैडी क्रॉप में क्या असर? हाँ? और ग्रासहोपर अगर पॉपुलेशन बढ़ गया तो पैडी क्रॉप डिस्ट्रॉय कर देंगे वो. उनका पॉपुलेशन बहुत ज्यादा अगर बढ़ जाएगा तो पैडी क्रॉप्स को खाएंगे और आपका पैडी क्रॉप्स इंपैक्टेड हो जाएगा. पैडी क्रॉप का प्रोडक्शन इंपैक्ट हो जाएगा. ओके. नंबर ऑफ विच कंज्यूमर्स विल डिक्लाइन एंड विच विल इंक्रीज? किनका इंक्रीज हो जाएगा भाई साहब? कौन से डिक्लाइन हो जाएंगे? ग्रासहोपर इंक्रीज हो जाएंगे. ठीक है. और तो ग्रासहोपर्स आपके क्या हो जाएंगे? ग्रासहोपर्स विल इंक्रीज और पैडी क्रॉप्स विल डिक्रीज. ठीक है. फ्रॉग्स तो चले गए हैं,
तो स्नेक्स भी डिक्रीज हो जाएंगे आपके। व्हाट विल बी द ओवरऑल इफेक्ट ऑफ द इकोसिस्टम? देयर विल बी एन इम्बैलेंस दैट विल बी क्रिएटेड। ठीक है, व्हाट इज एनवायरमेंट, व्हाट इज इंक्लूडेड इन एनवायरमेंट, क्या क्या है सब एनवायरमेंट में? ऑल दोज लिविंग ऑर्गेनिजम्स interact with each other and their growth, reproduction and other activities। ठीक है, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये आपस में इंटरैक्ट करते ही करते हैं, उनका ग्रोथ रिप्रोडक्शन सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। और ये हो गया आपके भाई साहब बायोटिक फैक्टर्स। अब बायोटिक फैक्टर्स में क्या क्या आ जाएगा? टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड, सॉइल, मिनरल्स, ये सब आपके अबायोटिक फैक्टर्स में आ जाएंगे। ऑल दीज विल बी इंक्लूडेड इन द अबायोटिक फैक्टर्स। नॉन लिविंग एनवायरमेंटल फैक्टर्स, फॉर एग्जाम्पल गार्डन एक इकोसिस्टम है, कोई भी एक गार्डन, ठीक है, एक इकोसिस्टम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंसेक्ट्स होंगे। ठीक है, एक इस पे भाई साहब गार्डन है कोई, तो इसमें आपके प्लांट्स, ग्रासेस, ये सब होंगे, इंसेक्ट्स भी होंगे, ग्रास होगा, ठीक है, बर्ड होगा, फ्लावरिंग ट्री होगी, फ्रॉग होगा। ऑल दीज लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्ट विथ ईच अदर। इन सब का भाई साहब कंटिन्यूस आपस में इंटरेक्शन चल रहा है। ठीक है, and their growth, reproduction and other activities are affected by the abiotic components of the ecosystem। ये सारा चीज जो है तो अबायोटिक कंपोनेंट से इंपैक्ट हो रहा है। सम अदर एग्जांपल्स ऑफ इकोसिस्टम आर, जैसे फॉरेस्ट आपका इकोसिस्टम हो गया, पॉन्ड्स एक इकोसिस्टम हो गया, लेक्स एक इकोसिस्टम हो गया, सारे आपके इकोसिस्टम है। एक सिंपल सा गार्डन भी आपका एक इकोसिस्टम है। ठीक है, तो ये आपके नेचुरल है। ठीक है, क्रॉप ट्री, ये वाले आपके नेचुरल क्यों है? क्योंकि अपने आप क्रिएट हुए हैं, आपने नहीं क्रिएट किया इसको। ठीक है, मैन मेड नहीं है, दीज हैव बीन क्रिएटेड ऑन देयर ओन। तो फॉरेस्ट, पॉन्ड्स, लेक्स आर बेसिकली ecosystems which are natural। some other examples of ecosystems are crop fields हो गए, gardens हो गए, तो these are artificially created। ठीक है, ये हमने क्रिएट किया है, क्रॉप्स हो गए, गार्डन फील्ड्स हो गए। ठीक है, सो एनवायरमेंट एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। एनवायरमेंट इज अ मच ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स affecting the living organisms in any possible way is collectively called as the environment। ठीक है, तो ये सारे भाई साहब कलेक्टिवली हम क्या बोलेंगे? एनवायरमेंट। इन शॉर्ट, environment is the condition in surrounding। it includes many biotic, abiotic, natural and artificial factors। तो इसमें क्या क्या होते हैं भाई साहब? बायोटिक फैक्टर्स होते हैं, अबायोटिक फैक्टर्स होते हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फैक्टर्स होते हैं। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट, वन इज नेचुरल एनवायरमेंट एंड द अदर इज आर्टिफिशियल एनवायरमेंट। ठीक है, एक आपका भाई साहब नेचुरल एनवायरमेंट होगा और दूसरा होगा आर्टिफिशियल एनवायरमेंट। नेचुरल एनवायरमेंट में क्या क्या होगा भाई साहब? कंसिस्ट ऑफ एयर है, एटमॉस्फेयर, वाटर, लैंड, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक्सेट्रा। कंटिन्यूअस इंटरेक्शंस अकर बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक फैक्टर्स और अबायोटिक फैक्टर्स में कांस्टेंट सा इंटरेक्शन चलता ही रहेगा। ठीक है, their interactions are very important। artificial environment is also affecting the natural environment directly or indirectly। basically environment consists of two basic factors। एक हो गया आपका बायोटिक और दूसरा हो गया आपका अबायोटिक। अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग, सॉइल हो गया, एयर हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया, वाटर हो गया, ये सारे भाई साहब आपके क्या हो जाएंगे? अबायोटिक फैक्टर्स। ठीक है, the science that deals with the study of interaction between biotic and abiotic factors of the environment is called as ecology। तो ऐसा साइंस जो भाई साहब आपके बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स से डील करता हो, इसको अपन क्या बोलेंगे? इकोलॉजी। बेसिक फंक्शनल यूनिट टू स्टडी द इकोलॉजी इज कॉल्ड द इकोसिस्टम। एनवायरमेंट कंसिस्ट ऑफ मेनी इकोसिस्टम्स। एनवायरमेंट में काफी सारे इकोसिस्टम्स होते हैं। वी हैव स्टडीड सम इकोसिस्टम्स इन अर्लियर क्लासेस। अ स्मॉल पॉन्ड इज एन इकोसिस्टम। एक स्मॉल सा जो पॉन्ड होता है वो भी अपने आप में भाई साहब क्या है? एक इकोसिस्टम है। Whereas the Earth is the largest ecosystem। तो अर्थ आपका एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है। In brief, biotic and abiotic factors occupying a definite geographical area and their interactions collectively constitute the ecosystem। तो ये सब भाई साहब आपका एक इकोसिस्टम बनेगा। बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स और उनके इंटरेक्शंस कलेक्टिवली हम इसको क्या बोलेंगे? दिस इज बेसिकली एन इकोसिस्टम। Environmental balance is maintained through continuous operation of various natural cycles। like आपका हो गया वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल। वाटर साइकिल क्या होता है भाई साहब? व्हाट इज वाटर साइकिल? वाटर किसी लेक में या सी में इवेपोरेट होकर ऊपर जा रहा है, क्लाउड बन रहा है, फिर वो बारिश गिर रही है, फिर से भाई साहब वो सर्कुलेट। तो दिस बेसिकली अ कंटिन्यूअस वाटर साइकिल। ठीक है, कार्बन साइकिल आपका क्या हो जाएगा? व्हाट इज कार्बन साइकिल? शरीर, हम सबके शरीर में कार्बन है। जब हम मर जाते हैं और जमीन के अंदर ये कार्बन चला जाता है तो उसी कार्बन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल्स बन रहे हैं। उस फ्यूल से बर्न होने के बाद एनर्जी रिलीज हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है। दैट इज बेसिकली गिवन इनटू द एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो जो फूड हम खा रहे हैं, प्लांट्स, वो ग्लूकोज है। उस ग्लूकोज का भाई साहब हमारे अंदर बर्निंग होकर क्या प्रोड्यूस हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर से एनवायरमेंट में जा रहा है।
तो ये एक कांस्टेंट सर्कल चल रहा है, ठीक है। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर फूड बना रहे हैं, हम प्लांट्स को खाकर वही कार्बन डाइऑक्साइड को एनवायरमेंट में रिलीज कर रहे हैं। तो देयर इज अ साइकिल व्हिच इज कंटिन्यूअसली गोइंग अराउंड, ठीक है। ये हो गया आपका कार्बन साइकिल। गैसियस साइकिल्स लाइक नाइट्रोजन साइकिल। अभी देखो नाइट्रोजन एक ऐसा चीज है जो ऑलमोस्ट 78% हमारे एनवायरमेंट में है एंड नन ऑफ अस आर एक्चुअली इक्विप्ड टू हैंडल दिस नाइट्रोजन। इतना नाइट्रोजन हम अब्जॉर्ब नहीं कर सकते, ठीक है। ये जो नाइट्रोजन है बेसिकली, ये नाइट्रोजन भाई साहब आपका कितने परसेंट का है? नाइट्रोजन इज ऑलमोस्ट क्लोज टू 79%। अगर हमने इस नाइट्रोजन को ऑब्जॉर्ब कर लिया तो हमारे अंदर प्रोटीन कंटेंट बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। सो वी आर नॉट इक्विप्ड टू हैंडल दिस 79% नाइट्रोजन। हाउएवर देयर आर सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये आपके रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं, जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया हो गया, एजिटोबैक्टीरिया हो गया। ये क्या करेंगे भाई साहब? नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से ऑब्जॉर्ब करेंगे एंड दे विल कन्वर्ट इट इनटू नाइट्रेट्स, और यही नाइट्रेट्स भाई साहब क्या हो जाएंगे? अमीनो एसिड्स या प्रोटीन्स में ऑब्जॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है। तो अगेन आप देखो यहाँ पे ये नाइट्रोजन यहाँ पे ऑब्जॉर्ब हो रहा है, यही नाइट्रोजन हमारे अंदर प्रोटीन्स बनाता है, अमीनो एसिड्स बनते हैं, और फिर जब हम मर जाते हैं, ठीक है। सो व्हेन एनिमल्स एंड प्लांट्स डाई, हाँ तुम भाई साहब सो ही जाओ, व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई दिस नाइट्रोजन इज अगेन रिलीज इनटू द सॉइल। यही नाइट्रोजन भाई साहब सॉइल में रिलीज हो जाता है, ठीक है। सॉइल, तुम सबके सर पे तलवार लटक रही है, तुम्हारे आजू बाजू के लोग होश में हैं, तुम होश में नहीं है। वो एक सो रहे हैं भाई साहब, ये एक सो रहे हैं भाई साहब, और मैं गिनती दिला दूं आपको और कौन कौन जाने वाला है रेमेडियल लिस्ट में। इट्स अ शेम टू गो इनटू द रेमेडियल क्लासेस, बहुत बड़ा शेम है, धब्बा है आपके ऊपर। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नहीं है, 10th का बोर्ड्स है, 12th का बोर्ड्स है। अगर आप इसको स्मूथली नहीं क्रॉस कर पा रहे हैं देन यू आर वे अवे फ्रॉम बेसिक स्टडीज। एकदम जो एबीसी वाला फॉर्मेट है स्टडीज का, उससे भी आप बहुत दूर हैं। आप अगर रिमीडियल क्लासेस में जा रहे हैं, आप अगर भाई साहब यू हैव टू गिव एन अपीयर फॉर रीटेस्ट, यू आर फार ऑफ, ऑडियंस होने के लायक भी नहीं है आप। मैच खेलना तो दूसरी बात है, आपको शायद टिकट भी ना मिले अंदर जाने का। और कब तक इस चीज से आप जूझते रहेंगे, आई हैव नो क्लू। कब तक बिलो एवरेज रहना है लाइफ में, इट इज अप टू यू। यू हैव चोजन टू बी बिलो एवरेज। ये एक जर्नी जो आपकी 18 साल की, इसमें अगर पूरा 18 के 18 साल आप बिलो एवरेज ही रहेंगे, क्या ये क्वेश्चन आपको कभी बॉदर नहीं करता है कि यार एक साल तो कमाल दिखाएं, एक साल तो अपने आप को लिफ्ट करें? 18 years, 20 years, whatever has been your span of studying, all these years, not a single year, not a single semester, not a single test, have you ever been able to prove yourself and outnumber others? Have you decided for a fact that you have to stay below average? ये बहुत दर्दनाक सवाल है। आपसे कभी अपने आईने के सामने खड़े होकर इस चीज को पूछिए अपने आप से। बाल बाद में झाड़ लेना भाई साहब, परफ्यूम बाद में लगा लेना, पहले इस चीज को पूछ लो कि ये समझौता कर लिया है क्या बिलो एवरेज रहने का। और अगर ये समझौता हो चुका है तो किसी का बाप भी आपका कोई बाका नहीं बिगाड़ सकता। यू आर गोइंग टू स्टे दिस वे, यू आर गोइंग टू रॉट दिस वे। सड़ेंगे आप ऐसे, आपने सड़ने का कार्यक्रम बना लिया है, और इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, ना ही आपके पेरेंट्स, ना ही आपके टीचर्स, ना ही आपके क्लास वाले, कोई नहीं। इफ यू हैव डिसाइडेड दिस वे, not one attempt, not one spark in you to change the dimension, at least for a year, at least for a few months. आपके अंदर साहस की कमी है, यू लैक करेज, डरपोक हैं आप। 4-5 बम फोड़ लिए हाथों में, वैसे बम फोड़ लिया तो उसमें करेज नहीं होता है भाई। जो चीज आपके अंदर वीक है ना, उसको स्ट्रॉन्ग बनाने का अगर आपके अंदर जज्बा नहीं है तो यू आर मतलब निहायत ही डरपोक इंसान है आप। बाकी कहीं भी आप कॉन्फिडेंस में लहलाते हुए घूम रहे हो, अगर आपका बेसिक जिस चीज से आपको 20 साल तक बैठाया गया है, उस चीज को चेंज करने का आपके अंदर अगर कभी भी जज्बा नहीं आ रहा है तो डेफिनेटली आप बहुत बड़े डरपोक क्लास के इंसान हैं, बहुत ही बड़े डरपोक क्लास के इंसान हैं, निहायत ही डरपोक, चूहे से भी बदतर हैं आप। इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा, कोई लेक्चर नहीं दे रहा हूं मैं आपसे, आपको बता रहा हूं कि आप जो ओवर कॉन्फिडेंस लेकर घूम रहे हैं ना, ये ओवर कॉन्फिडेंस किसी दो कौड़ी का नहीं है।
जहाँ पे कॉन्फिडेंस दिखाना है, जहाँ पे अपने आप को इम्प्रूव करके आगे बढ़ना है ना, वो आपका जज्बा होता है, वो उस पे जाइए। और अनफॉर्चुनेटली नहीं दिख रहा है। ये सब डर के फंडे आपको इस्तेमाल किए जा रहे हैं, भाई साहब आपका एग्जाम आने वाला है, प्रीलिम्स आने वाला है, ये सब डर का मामला आपको इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि आप शायद यही भाषा समझ पाएंगे, नेचुरल भाषा आप नहीं समझ पा रहे। Human existence is totally impossible without the existence of nature. Hence, it is basic responsibility of human being to preserve the nature without disturbing its balance. It is said that we have got the Earth planet on lease from our future generation. Lease मतलब समझते हैं? Lease मतलब होता है रेंट पे मिला है हमको। ये हमारे पापा का प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है? भले ही हमने प्रॉपर्टी में स्टैम्प पेपर ये सब खरीद लिया है हमने प्रॉपर्टी को, लेकिन फिर भी आप प्रॉपर्टी के नहीं है, ठीक है? Okay, so we have got it lease from our future generation, then not as an ancestral property from our ancestors. Hence, we should not forget to conserve it from ourselves and for future generation. तो कंजर्वेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है? हम इसको निहायती इस तरह से अगर यूज करेंगे कि हमारे फ्यूचर जनरेशन इसको यूज ही ना कर पाए, ठीक है? सो दैट इज नॉट द राइट वे ऑफ यूजिंग नेचर, ठीक है? क्लियर है? ओके, स्टेट बोर्ड वाले जा सकते हैं।